In today's class, we will be continuing with the topic of kinematics of particles and rigid bodies. And today we are going to take a topic called as radial and transverse velocities and accelerations. Now, this particular topic comes up only in the case of curvilinear motion. Just imagine that a particular body or a particle, let it be a car or a bike, anything, it is taking a curved path as shown here. Now, it is not necessary that the curved path should be a circular path. You should always learn to differentiate between a simple curve and a circle. A circle is a special case of a curve. A curved path could be anything like this also. So this is not a circle. Circular path is defined as a path taken by an object which always maintains a constant distance of r from a reference point. Now, in the case of a circular path, the reference point is the center of the circle. So, whenever you see a circular path, you can be 100% sure that from the reference point or the center of the circle, the distance of small r will be constantly maintained. And such a special curved path is called as a circular path. On the other hand, if you take a simple curve which does not have to follow any constraint like a constant distance being maintained from a reference point, then it becomes a simple curve. And that simple curve even need not be a specified geometric figure like an ellipse or a parabola or a hyperbola. The parabola, hyperbola, ellipse, circle, these are all curved structures. But when you are talking about a general curvature or a general curved path, it need not be any of the standard following entities. It could be any random curved path like this, anything, which just has a curve. That's all. Now, after having understood what a curved path means, now you are pretty sure about one thing, that a curved path need not be a circle. This is the most important thing that you need to understand. Circle is a special case of curved paths. So just imagine that a object is traveling along a curved path, not necessarily a circular path. And now what we generally do is, if the object has a certain velocity with which it is traveling at that particular instant, then generally what we have done till now is we conveniently take two components of the velocity in the x or y, or even if it is a three-dimensional path, then you can take the z component also. But for now, let us take a two-dimensional case only. So if v is the velocity along the tangent of the curvature at a particular instant, I am saying the word instant because as soon as the person reaches another point, the tangent to the curvature becomes different, and then the velocity will be different, and the direction and magnitude both can vary. So that is why we are talking about an instantaneous velocity here. So let us say that at this particular instant, the velocity is v, and as indicated in the given direction. So what you can do is, you can conveniently put your coordinate system here, and then you can say the instantaneous angle made by this velocity with the horizontal, let it be theta. So I can say that the velocity has an x component vx and a y component dy. So my overall instantaneous velocity would be given by the resultant of these two velocity components along the two directions. This is what we generally do. Now today what we are going to learn is something very similar to this concept that you have understood over here, that
that the instantaneous velocity and instantaneous acceleration of any object traveling in a curved path can be taken or divided into two components. And if the components are taken along the regular Cartesian coordinate axis x and y, then you get a case like this. So there is nothing new in what I have told you right now. ये चीज आप लोगों को already पता है और intuitively भी समझ में आती है कि yes इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं. But now what you have to learn fresh is what do you mean by the radial component and what do you mean by the transverse component. See, this is not a new concept altogether, but you can say this is a small variant of what you have understood over here. Now, let me explain what is the meaning of radial and transverse components. Once again, let us take the same example that the curve is being followed by a particle. Now, take an initial point where the particle was currently on the curve. Take a reference point from which the observer is looking at the object which is traveling. So this stationary point, I am naming it as O, and an observer is standing at the point O and looking at the object which is traveling along the curve. So at this particular instant, the distance of the traveler on the curve from the reference point O is, let us say, R1. Now, after traveling some distance along the curve, as you can see, it is a curve and not necessarily a circle. The distance from the reference point changes to R2. Now, just like in a circular path, your reference point is the center, and the distance of the traveler always remains equal to R. Now, compare this case and this case. The only difference between these two cases is that in the second case, or in the case of the regular curved path, instead of a circular path, the radius is changing. In a circular path, with the passage of time, कुछ पूछ रहे हो? सर ऐसे कह रहा हूँ थीटा भी तो चेंज हो रहा है. हाँ मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप सुन तो लो एक बार बात को, मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी. As the time passes, at t1, the object in a circular path was here. At t2, the object on the circular path was here. So another thing is changing, that is theta. Okay. The same thing happens in the curved path also. Now compare circular motion and motion on a simple curve. In circular path, r is not changing, theta is changing. In a regular curved path, which is not necessarily a circle, r is changing, theta is also changing. This is the only difference between a circular path and a curved path. तो सर्कुलर पाथ में सिर्फ थीटा चेंज होती है टाइम के साथ में, आर चेंज नहीं होता. लेकिन सिंपल कर्व्ड पाथ में आर भी चेंज हो सकती है और थीटा तो शर्तिया रूप से चेंज होती ही. So this is the difference that you need to understand between circular motion and motion along a regular curve. But okay, we were discussing what is the meaning of radial component and transverse component. Radial component, as indicated by the name, has to be always taken along the measurement of the radius from the reference point. So if I say that my object is here at this point, at point number 1, then the radial velocity will be positioned along the radius like this. So I will say that this is the radial velocity Vr at point number 1. So I will say this is Vr1. Transverse component. Now the word transverse in English language or English literature has the meaning of being perpendicular to longitudinal. तो कोई सी भी डायरेक्शन को अगर आप लॉन्गिट्यूडनल मानते हो
तो उसका सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेना है, उसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहा जाता है. That is the meaning of transverse. That means perpendicular to the currently considered direction. That is transverse direction. So if you are talking about a pair of velocities in which one velocity is radial and the other has to be transverse to radial, then obviously extending the logic of this English literature, you can say that if the velocity along the radius is vr1 at this point 1, then obviously the transverse component of velocity at point 1 must be standing perpendicular or transverse to the component vr. And now this velocity can be named as vt1, or the transverse velocity at point 1. Now if you extend the same logic at point 2, now after some passage of time t, the object is at point 2 now. Now if I ask you to plot the components, radial and transverse components of velocity at point 2, then the correct positioning will be like this. Since we are talking about the radial velocity, so the radial velocity now is in this direction. So this is vr2. And since the transverse component should always be transverse to the radial component, the transverse component will now stand perpendicular to VR like this. So we can say that this is VT2. So this is the concept of radial and transverse components. So what we are doing here is, basically we are taking a different coordinate system. That's all. Nothing else is different here. Now I will draw a very symmetrical figure here to help you differentiate between the general coordinate system and the coordinate system of radial and transverse directions. See, I am taking the same situation once again, point number 1, point number 2. If instead of taking the radial and transverse directions, I take the general direction of x and y axis, in that case, whatever velocity is contained by the object at point 1, I will simply take the direction vx and vy 1, 1. So I say that the components of velocity along the xy direction at point number 1 are vx1 and vy1. And as you can see, it is very similar to vr1 and vt1 at point number 1. But at point number 2, my vx2 is like this and vy2 is like this. Now this is different. See, vr2 is along the radial direction, vx2 is still along the x direction. Vt2 is perpendicular to r2 and not in the y direction, but vy2 is always parallel to the y axis. This is the difference between the two coordinate systems. That is all you need to understand. If you have understood this basic difference between, what is the difference I'm talking about? I'm talking about the difference between coordinate system xy and coordinate system rt. इन दोनों को कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह से ट्रीट करो आप बस सिर्फ. ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हो गए अलग अलग. इन द xy कोऑर्डिनेट सिस्टम, द सेम कर्व्ड पाथ, द सेम ट्रैवलर, सेम वेलोसिटी, but when you take the components, you take it as vx1, vy1, vx2, vy2, and you can see how they are, the components, how they are taken. Okay. In the second coordinate system, that is the radial and transverse coordinate system, VR has to be deliberately positioned in the current location of R. It will not follow the direction of X and Y. It will follow the direction of radius, and from the direction of radius, the direction of transverse component will automatically emerge, because you simply have to place it perpendicular to it. तो ये दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं. तो अब जो आगे अपन डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ये जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, इसको बेसिकली अपन कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं सीख रहे हैं.
अभी मैंने यहाँ पे आपको इनिशियली जो चीज समझा दी है, इसके बेसिस पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपन अब जो वेलोसिटी का जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन का जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो सिंपली एक्स वाई सिस्टम को त्याग करके आर टी सिस्टम को अडॉप्ट करके कर रहे हैं। दैट्स ऑल। क्लियर? तो अब अपन सिर्फ आर टी सिस्टम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जब एनालिसिस करेंगे तो क्या चीजें आनी है, कैसे कंपोनेंट्स लेने हैं, मैं अपने को एक से, अरे दिनेश इसको यार वो करो ना। Okay. Now what we have to do is we have to develop relationships for the instantaneous radial and instantaneous transverse velocities and instantaneous transverse acceleration and instantaneous radial acceleration. ठीक है? तो आज का अपना एम क्या है, पहले इसको अपन सिंपल टर्म्स में लिख लेते हैं कि अगर किसी भी कर्व्ड पाथ पे, जनरल कर्व्ड पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, if it is moving along a path, what is the instantaneous radial velocity, what is the instantaneous transverse velocity, इन दोनों के जनरल फॉर्मूला डेवलप करने। Similarly, if there is some acceleration of the particle, what is the instantaneous radius acceleration and what is the instantaneous transverse acceleration of the particle। तो ये चार आइटम्स की अपन को, यानी कि वी आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी टी का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर का फॉर्मूला क्या है और ए टी का फॉर्मूला क्या है, ये चीज अपन को डेवलप करना है। यही अपने आज के क्लास का एम है। नाउ आई हैव टेकन द एक्सेप्ट्स फ्रॉम द बुक डीपी शर्मा एंड आई हैव प्लेस्ड इट हियर। कई सारी किताबों में ये जो एनालिसिस है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पेश किया गया है। मेरे कंपैरिजन के रिजल्ट के अनुसार डीपी शर्मा की बुक में जो इसका डेरिवेशन दे रखा है ये समझना सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है? एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो। एंड द ओनली डिफरेंस दैट आई एम गोइंग टू मेंशन is in how they write the transverse component of velocity। तो यहां पर नोट्स में जो यहाँ पे डेरिवेशन करा रखा है, मैं बिल्कुल वही डेरिवेशन आपको अभी प्रैक्टिस में करवाऊंगा। लेकिन बस आपको ये देखना है कि इस किताब में इन्होंने ट्रांसवर्स डायरेक्शन को टी लिखने की बजाय थीटा लिख दिया है और कोई फर्क नहीं है। और मैं आज जो आपको डेरिवेशन कराऊंगा उसको आपको वी टी लिख करके कराऊंगा। आप अगर चाहो तो थीटा सफिक्स यूज कर सकते हो या टी सफिक्स यूज कर सकते हो, इट इज योर चॉइस, इट डज नॉट मैटर। ठीक है? तो ये दोनों को आपको बता करके एक फायदा ये भी हो जाएगा कि कहीं एग्जाम में वीटी पूछ ले या किसी दूसरी किताब में आपको वीटी कहीं दिख जाए तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हमने तो वी थीटा सीखा था, ये वीटी क्या चीज होती है। तो ये कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। So I have told you that v theta and vt are the same thing. You can use any notation to represent the transverse direction. Radial direction को vr से ही इन्होंने रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। Anyway, एक छोटा सा डिफरेंस और कराऊंगा। किताब में जो इन्होंने फिगर लिया है डेरिवेशन करने के लिए, इस फिगर को देख करके फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हो सकता है कि इसको देख करके कुछ लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, बट आई विल सिंप्लीफाई द फिगर टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑल्सो। इन्होंने क्या किया, एनालिसिस करने के लिए P और Q को इस एक्सिस पे लेने की बजाय ऐसे ले लिया, यहां से शुरू कर लिया। तो अब ये देखो इन्होंने थीटा और आर को ऐसे पोजीशन कर रखा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन और रेडियल डायरेक्शन को ऐसे पोजीशन कर रखा है। व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर यू एंड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके टेढ़ा लेने की बजाय सीधा लेकर के करोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आता है और उसको एक्सप्रेस करना भी ज्यादा आसान है। So let us start the derivation of velocity components.
तो अपन कहां से शुरू कर रहे हैं? लेट अस से दैट अ पार्टिकल is taking a curved path. Again, not necessarily a circular path. General curve path पे चल रहा है. You go and position yourself at a reference point O. It could be on the left hand side or the right hand side. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन आप लोग अपने एक इमेज आपको याद रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा कन्वीनियंट है. The particle starts moving from a point P on the curved path and the initial distance is r from O. तो इसको P बोल दिया अपन ने. After some time, very small interval of time delta t, the particle reaches another point Q, which makes an angle of delta theta. क्योंकि एक बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में ये वहां पहुंच गया P से Q पे, तो इसमें जो रेडियस का जो एग्जैजरेशन होगा, या फिर आप ये कहोगे कि भाई OP और OQ में कितना डिफरेंस है, तो आई विल सिंपली से दैट सिंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज वेरी वेरी लिटिल, द चेंज इन रेडियस इज सिंपली r प्लस डेल्टा r. ठीक है, तो एक बहुत छोटे से डिस्टेंस का मैंने सैंपल लिया है. हालांकि रियल टाइम में तो ऑब्जेक्ट चलती जा रही है, बट दीज आर इंस्टेंटेनियस डिस्टेंसेस. एंड नाउ I position my coordinate system. अब मैं XY coordinate system बनाने की बजाय I will simply position my coordinate system as, let us say, now I am establishing the initial radial direction as R and the transverse direction as T. And as I mentioned earlier, you can take it as theta also. And these are perpendicular directions. Okay. I will make a small construction. I will extend the initial radial direction and drop a perpendicular from above and name this point as R. And now I want to develop the expression for radial velocity. So I can say that radial velocity is change in radial velocity, change in radial distance or displacement divided by delta t. Is this correct or not? भाई मैं रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि रेडियल वेलोसिटी जो है चेंज इन रेडियल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. और अगर मेरे को रेडियल वेलोसिटी चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि रेडियल डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है डिस्प्लेसमेंट में, उसको टाइम से डिवाइड कर दो. इज दिस करेक्ट और नॉट? यू टेल मी. यस सर. ठीक है. एंड टू बी मच मोर प्रिसाइज, मैं क्या कहूंगा, सिंस डेल्टा टी इज स्टिल अ मेजरेबल एंटिटी, वेलोसिटी को अपन क्या करते हैं, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. यानी कि डिस्प्लेसमेंट, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में डेल्टा टी का समय लगा है, तो वेलोसिटी की जो एब्सोल्यूट डेफिनेशन है वो लिमिट लगा करके की जाती है. वो डायरेक्टली अगर आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो जैसा आपको पहले सिखाया गया था, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी. बट इफ यू वांट टू टेक द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ कंटिन्यूअम. अगर किसी और टाइम पे अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं ये कंटिन्यूअम का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, जो कि लिमिट्स के अंदर से आती है. बट फॉर नाउ you have to satisfy yourself with the simple theme that the instantaneous velocity is never given by delta s upon delta t.
नहीं साहब, ये वेलोसिटी नहीं होती, ये एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट चल रहा है और एकदम से उसकी फोटो खींची और बोला कि इस एग्जैक्ट इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, that sort of velocity is called as instantaneous velocity, and that is always given by limit the time difference tending to zero delta s upon delta t. ये है instantaneous velocity की actual definition. And since we are talking about the instantaneous velocity here, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज है, आपने बोला कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को मैं पूरा तरीके से अगर डिफाइन करूं तो आई विल से रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑफ चेंज इन रेडियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी. दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ माय रेडियल वेलोसिटी. नाउ तो अब मेरे को क्या करना है, चेंज इन रेडियल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, इट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है. So I will rewrite this expression like this. VR is limit delta t tends to zero. अब देखो चेंज इन रेडियल डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल डायरेक्शन, या फिर इन आर डायरेक्शन, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. यहां तक ठीक है क्या? एक बार कंफर्म करा दो, आर यू फॉलोइंग मी? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, और हो सकता है कि आप लोग अगर ये सिर्फ टेक्स्ट को रीड करें तो some of you might be smart enough to deduce completely and understand everything, but there is a very good chance that a majority of you might get highly confused कि ये हो क्या रहा है, कौन सी चीज ले ली, कहां से लिमिट आ गई, डेल्टा टी क्या है, ये क्या चल रहा है. तो इसीलिए एक एक चीज जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, आप लोग मेरे को साथ साथ बीच बीच में प्रॉम्प्ट करते रहना कि यू आर फॉलोइंग, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को इंटरप्ट करके जरूर पूछें. अभी तक अपन ने ये डिफाइन कर लिया कि रेडियल डायरेक्शन की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मुझे डेवलप करना है. सो आई एम डिफाइनिंग इट एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल डायरेक्शन माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है. अब देखो इनिशियल पॉइंट क्या था, P था, फाइनल पॉइंट क्या है, Q है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट O है. तो सबसे पहले मेरे को आप फिगर में देख करके बताओ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन आर डायरेक्शन क्या है. इट इज सिंपली आर. फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन द आर डायरेक्शन कितना है, आर डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो ये है, ये मत भूलना, दिस इज द आर डायरेक्शन, दिस इज द टी डायरेक्शन, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन आर डायरेक्शन. सोच के बताओ. प्लस डेल्टा आर कॉस थीटा. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या बोला, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन द आर डायरेक्शन चाहिए अपने को. सो दैट इज नॉट आर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि वो आर डायरेक्शन से डेल्टा थीटा हटकर है. और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो आर प्लस डेल्टा आर है, ठीक है, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन द आर डायरेक्शन कितना है, तो आर डायरेक्शन आपने पहले ही सेट करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आर है. तो आपको आर प्लस डेल्टा आर का ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा जीरो से लेके आर तक का, एंड दैट इज व्हाई वी इनिशियली मेड अ कंस्ट्रक्शन लाइक दिस, सो दैट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन द आर डायरेक्शन is given by OR and initial displacement in R direction is given by OP. ये चीज क्लियर हो गई क्या? यहां से लेकर के यहां तक तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है R डायरेक्शन में, और R ही डायरेक्शन में फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो O से लेकर के R तक की डिस्टेंस है. ये दोनों डिस्टेंस अब प्रॉपरली R डायरेक्शन में अलाइंड है.
एंड फ्रॉम द फिगर यू कैन क्लियरली सी कि ओ आर जो है वो किसके बराबर है, आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा के बराबर है, और ओपी किसके बराबर है, सिंपली आर के बराबर है। यहां तक चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको, ये बताओ। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. एंड Complete. नाउ वी विल प्रोसीड विद दिस एक्सप्रेशन। अब मैं इसमें मैथमेटिकल टर्म्स डाल दूंगा। सो फाइनली डूइंग द रिप्लेसमेंट, I will write velocity of radial direction is limit delta t tends to 0 of final displacement को लिखूंगा r plus del r cos del theta, initial displacement को लिखूंगा minus initial displacement is simply r whole divided by delta t। अब यहां तक आने के बाद अपना काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स तो सारे अपन ने कवर कर लिए, अब यहां पे सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। ठीक है, नाउ सिंस डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल एंड इट टेंड्स टू 0, वी कैन से दैट cos ऑफ डेल्टा थीटा विल टेंड टू 1। ये चीज समझ में आती है क्या, कि अगर आप cos ऑफ डेल थीटा ले रहे हो और डेल थीटा इतनी छोटी है कि वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो ऑलमोस्ट 0 का एंगल का कॉस ऑलमोस्ट 1 होगा। समझ में आती है बात, क्लियर है यस क्या? सर। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आई विल सिंपली रिप्लेस दिस cos डेल थीटा। cos डेल थीटा को 1 रख दिया मैंने, तो हटा दिया वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, वी आर इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, आर में से आर कैंसिल हो गया, दिस सिंपली बिकम्स डेल आर अपॉन डेल टी, और सिंपली राइटिंग डी आर अपॉन डी टी। कभी भी अपन इस तरह का एक्सप्रेशन पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि डेल आर अपॉन डेल टी ही नहीं, कुछ भी ले लो, जैसे कि डेल एक्स अपॉन डेल वाई, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, ये क्या चीज हो जाएगी, दिस इज सिंपली dx अपॉन dy। उसी तरीके से कोई दूसरी चीज ले लो, डेल x अपॉन डेल t टू 0, ये क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt हो जाएगी। तो कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाए, डेल x अपॉन डेल एनीथिंग एंड द डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0, तो वो सीधे डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज दिस, dr अपॉन dt, ये फाइनल इक्वेशन हो गई। तो अब आप ये बोलोगे यार ये इतना लंबा चौड़ा काम किया है, और ये तो आप ऐसे बोलते तो हम वैसे बता देते हैं कि भाई r डिस्प्लेसमेंट है और टाइम t है, तो वेलोसिटी r डायरेक्शन में क्या होगी, dr अपॉन dt होगी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा था ना ये एक्सप्रेशन। तो इसके लिए इतना लंबा चौड़ा नाक को घुमा के पकड़ने की क्या जरूरत थी, ये इसलिए पकड़ने की जरूरत थी क्योंकि अब आगे आने वाले एक्सप्रेशन आपके इंट्यूशन से नहीं बन पाएंगे। ये तो आप मान लो कि किस्मत से आपके इंट्यूशन में जो बात आती है, इंट्यूशन में बात कैसे आती है भाई, मैं बोल रहा हूँ रेडियल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट को r मानो, टाइम को t मानो, तो अब बताओ कि वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन क्या होगी, ये तो कोई भी बोल देगा dr बाई dt। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को s मानूं और टाइम को t मानूं, तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का डेरिवेटिव ले लूंगा ds बाई dt, वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो यही सेम चीज तो यहाँ पर आई है, देयर इज नो बिग डील अबाउट इट, बट दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड, एंड इवेंचुअली यू विल सी कि आगे आने वाली एंटिटीज आपके इंट्यूशन और आपके माइंड को टोटली बाईपास कर देंगी। तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि ये आइटम कहाँ से आया। तो इसी चीज को अब अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अब याद रखें कि हमारा एम क्या था, वी आर चाहिए था हमें, ये मिल गया, वी टी चाहिए, ये अभी पता करना है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन पे आएंगे रेडियल डायरेक्शन की, ये भी पता करना है, फिर एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स डायरेक्शन की, ये भी पता करना है। ये 4 आइटम के इक्वेशन डेवलप करना ही अपना अभी का करंट एम है।
and we have successfully done one derivation. The velocity in the instantaneous velocity in the radial direction of an object traveling along any type of curved path, whether it is circular path or non-circular path or any type of curved path. This is the general formula that you can always apply. तो अब आप ये सिर्फ मैथ्स में ही नहीं फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जनरल फॉर्मूला है ये फॉर रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द केस ऑफ अ कर्व्ड मोशन. ओके, अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे आते हैं. लेट अस गो बैक टू अ फिगर. ठीक है, एक काम करते हैं, लेट मी डू वन थिंग. इसको एक नई जगह पे ले लेते हैं. अब यहां पर आपको ये फिगर दिख रहा है. ठीक है, ये वाला फिगर अपन को चाहिए था, दिस वन. Just look at this figure and now we are going to develop the relationship for transverse velocity. तो अब मैं वही concept of velocity use करूंगा. Transverse component of velocity can now be defined as limit delta t tends to 0 of change in displacement in t direction divided by delta t. भाई वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है. ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. और उसकी लिमिट ले लूंगा तो मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. वही सेम चीज कर रहे हैं अपन. ट्रांसवर्स पहले रेडियल के लिए किया था, ट्रांसवर्स के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट लेके आए. ठीक है, अब इसको इलैबोरेट करें. that the transverse direction of velocity is limit delta t tends to 0. अब ये change in displacement in t direction का मतलब क्या है? इसका मतलब है final displacement in t direction minus initial displacement in t direction डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. यही है इसका मतलब. आगे चलें. अब फिगर देखना पड़ेगा कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट टी डायरेक्शन में और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टी डायरेक्शन में क्या निकल के आता है. ओके, लुक हियर. इनिशियली योर ऑब्जेक्ट इज एट पी पॉइंट. तो ये बताओ कि इस पॉइंट पे आपका टी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कुछ था क्या? ये इनिशियल है. तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आपका पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यही बैठा है आपका. ये टी डायरेक्शन है. तो टी डायरेक्शन में पार्टिकल इज सिटिंग एट दिस पॉइंट. एक तरह से कह सकते हो ओरिजिन पर ही बैठा है. सो व्हाट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन टी डायरेक्शन एट पॉइंट पी? 0. इट इज 0. ये चीज तो 0 है. व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन टी डायरेक्शन? अब जो है पार्टिकल क्यू पे पहुंच गया है. r plus del r sin theta. यस, वेरी गुड. आप ये कह सकते हो कि ये जो क्यू आर की जो लेंथ है, ये लेंथ ही आपकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन टी डायरेक्शन है. और क्यू आर लुकिंग एट दिस ट्राइंगल
right angle triangle QR is equal to R plus del R sin del theta. ठीक है क्या? तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन T जो है that is R plus del R sin del theta. And now the concepts can be removed and we can put the mathematical entities in place. So transverse component of velocity is limit delta T tends to 0. Final displacement in transverse direction को मैं लिख देता हूं R plus del R sin del theta minus initial displacement जो है 0 whole divided by del of T. ठीक है? Now again, since del of theta is a very small angle, so I can claim that sine of del theta is nearly equal to del theta. 0 नहीं, sine के केस में sine of angle becomes equal to the magnitude of angle itself. It does not become 0. ठीक है? तो sin del theta को del theta के बराबर रखा जा सकता है अगर del theta बहुत छोटी एंगल है तो. So making this replacement, my transverse velocity becomes limit delta T tends to 0 R plus del R whole multiplied by del theta divided by del T. यहां तक फॉलो किया क्या आपने? आर यू फॉलोइंग? यस सर. ठीक है. Now Vt is equal to limit delta T tends to 0. अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं R del theta plus del R del theta whole divided by del T. Now since both these quantities del theta and del R are very small, so the product of extremely small quantities becomes almost 0. ये ऑलरेडी 0 के इतने नजदीक हैं डेल आर और डेल थीटा कि अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो बिल्कुल ही कुएं में चले जाएंगे ये दोनों. तो whenever you see the multiplication of very small quantities, you can eliminate them and assume that to be 0. So eventually I get a final expression for Vt as limit delta T tends to 0 R del theta upon del T. अब चूंकि R के ऊपर कोई डेल नहीं है तो मैं R को बाहर ले सकता हूं. I can take R outside and put limit on what remains inside. And once again we arrive at a situation where we have del of something divided by del of something and the limit is on the denominator. So I can simply write Vt equal to R d theta upon dt. ये मेरा दूसरा फिगर आ गया. ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू R इंटू डी थीटा अपॉन dt. अब मेरे को कोई d थीटा अपॉन dt का कोई दूसरा ऑल्टरनेट फॉर्म किसी को पता है क्या? एनीबडी who can give me an alternate form of rate of change of angular displacement with respect to time. ये एक बहुत कॉमन क्वांटिटी है और आप लोग सब जानते हैं. ओमेगा. बताओ. वेरी गुड, इट इज ओमेगा. ओमेगा. तो आप Vt को R ओमेगा से भी याद रख सकते हैं. ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज R ओमेगा. अब आपको इस चीज से रिलेटेड एक फैक्ट और बताता हूं. And as soon as I tell that fact, you will remember कि yes, ये चीज हमने पढ़ रखी है पहले. सर्कुलर मोशन में अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बताओ, क्या वो r ओमेगा नहीं होती? यस सर. तो ये सेम चीज आपके निकल करके आई है फॉर एनी कर्व्ड पाथ. ठीक है, बस यही है
कि सर्कुलर मोशन में कई बार आपको ओमेगा कांस्टेंट मिल जाता है, तो आर ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट, लेकिन इस केस में ये जो ओमेगा है ये आपकी फंक्शन ऑफ टाइम और फंक्शन ऑफ थीटा दोनों है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। बट द एक्सप्रेशन इज इजी टू रिमेंबर। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, अब इसको बिल्कुल रट लो, बिल्कुल जितने अपन के चार एक्सप्रेशन बन रहे हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से रट लेना है, ताकि न्यूमेरिकल एग्जांपल जब अपन सॉल्व करें तो अपन को कहीं पे भी कोई शक नहीं रह जाए। क्या क्या अपन ने अभी निकाल लिया, वी आर का एक्सप्रेशन क्या है, फटाक से माइंड में आना चाहिए, इट इज डी आर अपॉन dr by dt. some people express dr upon dt in another form, they simply put a dot over it। ये पता है क्या आपको? No sir. नो सर। अब आप लोग इसको भी सीख लो, क्योंकि कई सारी किताबों में यू विल फाइंड दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो। अब मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, x डॉट, एंड आई एम आस्किंग यू इसका मतलब क्या है। डॉट मैंने कहा लगाया, x के ऊपर एक बिंदी लगा दी। दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स dx by dt। y डॉट क्या है, dy by dt। अच्छा, अब एक तुक्का लगाने को कह रहा हूं आपको, x डॉट डॉट क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन Del square x upon dx over dt square। dt square. दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो इसी तरीके से अब आपको एक नया नोटेशन मैंने सिखा दिया है, क्योंकि इससे पहले आपने कहा कि आपको कभी पता नहीं था ये। नाउ इन अ लॉट ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स इन योर कमिंग सेमेस्टर्स एंड ऑल, यू विल बी डीलिंग विथ सच नोटेशंस ऑल्सो। अब मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आप लोग इस एक्सप्रेशन को सिर्फ ये बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स? false है। इट इज ट्रू। वाई? थीटा डॉट का क्या मतलब होगा, डी थीटा अपॉन dt। dt। ये ओमेगा ही तो है, ओमेगा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एक्सप्रेशन देखो, थीटा डबल डॉट, सही है क्या, देख के बताओ। yes sir। Yes sir, सही है. यस सर। अल्फा क्या चीज होती है? अल्फा आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा यूज करते हैं, राइट? तो अल्फा इज नथिंग बट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड थीटा डबल डॉट is used to represent the second derivative। तो अब आपने एक नई नोटेशन सीख ली, डॉट और डबल डॉट की, ठीक है? और अब आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत बार ये किताबों में मिलेगा। सो नाउ यू रिमेंबर इट एंड लर्न टू अप्लाई इट। सो नाउ वंस अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन एट हैंड, आज अपन ने क्या क्या सीखा। पी आर इज इक्वल टू आर डॉट, फर्स्ट expression, or it is dr upon dt। ये याद रखना है। अब tangential component of velocity, or as represented in some books they write it as v theta। अपना ये जो आपको मैं आज जो नोट्स देने जा रहा हूं उसमें ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को v थीटा लिखा हुआ है, लेकिन आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज एग्जैक्टली द सेम। और एक चीज और आपको बता दूं, इसमें जो फिगर बना रखा है और अपन ने आज डेरिवेशन के लिए जो फिगर लिया है, ये देखो दिस फिगर, ये जो फिगर लिया है, इस फिगर में और आपके नोट्स में दिए हुए फिगर में फर्क कितना है। आप सिर्फ ये चीज देख लो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये देखो, इस ट्रायंगल को इन्होंने थोड़ा सा हवा में बना रखा है और अपन ने इसको यहाँ नीचे जमीन पे लाकर रख दिया, बस, और कोई फर्क नहीं, ठीक है? दिस फिगर एंड दिस फिगर इज एग्जैक्टली द सेम, द ओनली डिफरेंस इज कि मैंने इसका ये जो इनिशियल आर था इसको हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो अब इसमें मेरे को ये नहीं बनाना पड़ा, ये थीटा नहीं बनाना पड़ा मेरे को, और इससे एडिशनल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। सो यू कैन कन्वीनियंटली ड्रॉ द फिगर दैट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। आपको
ये वाला फिगर कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ये और कंफ्यूज करता है इसमें। हाँ बोलो। सर आपने जो फिगर बनाया है वो फिगर इसी में नोट्स में डाल के शेयर कर देना ना, जो याद रह जाए। भाई ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में आ गया ना आपके, और क्या चाहिए? और सर इसको नहीं हाथ से आप नहीं बना सकते क्या? पर इसलिए सर बना लेंगे। ये इतनी सी चीज अपने हाथ से नहीं बना सकते? तो बना तो सकता है बना लेंगे। Yes, sir. भूल बस जाए। फिर क्या दिक्कत है, करो, थोड़ा सा काम करो। भाई अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तब तो बात अलग है, लेकिन ये इतना सा एक फिगर है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और ये बता दिया कि भाई ये जो फिगर है इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ है मैंने। ये जो ट्रायंगल है इसको यहाँ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको ला करके नीचे रखा है मैंने, और क्या है, कुछ भी नहीं किया। इट्स द सेम थिंग टू डू इट। ठीक है, चलो यहां तक की बात तो हो गई। अब अपन एक कॉन्सेप्ट और आते हैं। लुक एट दिस, इसमें मेरे को अलग से आपको बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि मेरा कर्व्ड पाथ है, और मेरे कर्व्ड पाथ की अब मैं एक्स और वाई में नहीं बना रहा, मैं कंपोनेंट वी आर और वी थीटा से बना रहा हूं। The component of velocity at any instant is now measured not by Vx and Vy, it is being measured by the radial component of velocity and the tangential component, or the transverse component of velocity, V theta or Vt, anything that you prefer. ठीक है, तो अब ये कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भाई इसकी फलाना फलाना डिटेल ये है, एक पाथ पे एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये सारी चीजें आ गई, और आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज द वेलोसिटी। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। क्या पूछा? ये नहीं पूछा कि उसका रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है या ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है। ऐसे भी पूछते हैं, अलग अलग भी पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार दे पुट इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, दे सिंपली से व्हाट इज वेलोसिटी। और ये क्लियर कर दिया है पहले ही क्वेश्चन में कि पाथ कर्व्ड है, तो कर्व्ड पाथ पे वेलोसिटी की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ये अब आपको पता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, द रेडियल कंपोनेंट एंड द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, and they are mutually perpendicular to each other. So what is V? V is a vector which has to be taken as the resultant of these two quantities, V theta and VR. तो अब आपके पास में ऐसा केस आ गया कि वी आर तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वी थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, और वी जो है वो रिजल्टेंट है। तो वी कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है आपके पास में। कभी भी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर आपने कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हो और आपको रिजल्टेंट निकालना हो, तो दिस इज द फॉर्मूला अवेलेबल विथ यू। जैसे अपन Vx और Vy का निकालते थे, उसी तरीके से Vr और V थीटा को दो कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करो, अंडर रूट करो, दैट इज हाउ यू गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और द रिजल्टेंट वेलोसिटी। और ये यहां पर इसके बाकी कंपोनेंट्स रख दिए। Vr is dr upon dt, V theta is r into d theta by dt, या फिर r ओमेगा। इन दोनों को रख करके स्क्वायर कर दो। अभी अपन आगे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो इसकी सारी यूसेज अपन अच्छे तरह से सीख लेंगे। So today we have covered the derivation of Vr and V theta, and we have also understood that if in the question paper, instead of the individual components being asked, if the overall velocity is given, or the overall velocity is being asked of you, then you have to make a calculation like this. ये कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के ओवरऑल वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी का टर्म मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया आपको ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है ठीक सर। है, सो वी विल स्टॉप हियर। अभी एक्सेलरेशन वाला पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे तो अपन खत्म नहीं कर पाएंगे, तो उसको अपन कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो प्लीज स्टे विथ मी, आई विल टेक योर अटेंडेंस ओके सर। एंड लेट यू गो।